Assalamu alaikum students. Today we are going to learn decimal form of rational number in exercise 1.3. Now see how we will convert the rational numbers in decimal form. Simply we have to divide the numerator by denominator. Now here numbers are given. Three rational numbers are written here. 9 upon 37, 18 upon 42 and minus 11 upon 13. Now in question number 1, 9 upon 37 is the rational number and we have to divide 9 by 37. We write 9 and this is our divisor, dividend. This is our divisor and this is dividend. Now we have to divide 9 by 37 or we have to know the table of 37. So we write here the table of 37. I had written the table of 37. 37 ones are 37, 37 twos are 74, 3s are 4s are and so on up to 9. Now ये 37 से छोटा है, जब तक ये बड़ा नहीं होता हम डिवाइड नहीं कर सकते. उसको बड़ा बनाने के लिए हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ 0 लगाना पड़ेगा. जब पॉइंट लगा देंगे हम तो ये नंबर 10 टाइम्स बढ़ जाएगा. 10 टाइम्स बढ़ जाएगा. अब ये 10 टाइम्स बढ़ गया मतलब ये हो गया 90 और 90 ये 37 से बड़ा है. 37 के टेबल में 90 से छोटा नंबर 74 है. 37 2s are. So we write here 74 and subtracting 74 from 90 we get 10 minus 4 6, 9 minus 8 1. Again it is smaller than 37. पॉइंट हम लगा चुके हैं. एक 0 हम बढ़ा सकते हैं उसमें. अब ये हुआ 160. 160 से छोटा नंबर 37 के टेबल में 148 है. 37 4s are 148. Subtracting this we get here 12. वापस एक 0 लगाएंगे क्योंकि 12 37 से छोटा है. अब ये हो गया 120. 120 37 के टेबल में नहीं आता है लेकिन इससे छोटा नंबर मौजूद है. यहाँ पर 111 we write here 3. 111 subtracting from 120 we get 9. अब देखो यहाँ ये जो नंबर आया है 9 ये हमारा फर्स्ट नंबर है. मतलब इसके बाद सेम प्रोसीजर यही होगा कि एक बार हम 74 लिखेंगे, फिर 148 लिखेंगे, फिर 111 लिखेंगे. मतलब सेम प्रोसीजर, सेम यही नंबर्स हमको मिलने वाले हैं. इसके लिए हम स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर इनकी डिवीजन और यहाँ लिखेंगे दिस इज आवर रिमाइंडर. And quotient is 0.243243 which is repeating number. 9 upon 37 is equal to 0.243 again 243 many times. अगर इस तरह से नंबर्स मिलते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं that are called recurring numbers and we write the recurring numbers are written by this type. Recurring number
It is called recurring number. 9/37 is equal to 0.243 बार. इतने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, इसके लिए हम उन तीनों के ऊपर बार लगा देंगे. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, 18/42. फर्स्ट ऑफ ऑल we divide 18 and 42 by 6. 6 के टेबल में आते हैं दोनों भी नंबर्स. इसके लिए हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको. 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 6 3 जार 18, 6 7 जार 42. 3/7 is the simplest form of 18/42. So we divide 3 by 7. This is dividend, 7 is the divisor. Again here dividend is smaller than divisor, so we write here 0 point and make it 10 times 30. इसको 10 टाइम्स बढ़ा देंगे ऊपर पॉइंट लगाने के बाद. अब इसको डिवाइड करते हैं. 7 का टेबल सबको आता है. 7 3 जार 7 4 जार 7 4 जार 28. We get 30 minus 28, 2. Again 0. Then less than 20, 7 2s are 14. Subtracting 14 from 20, we get 6. राइट 0. 60 से छोटा नंबर 7 के टेबल में 7 8 जार 56. Subtracting we get 4. Then 7 5 जार 7 7 जार 49. Subtracting 49 from 50, we get 1. Then again write 0. 7 1s are 7. Subtracting 7 from 10, we get remainder 3, which is our first number dividend. So we write here 3/7, that is 18/42 is equal to 3/7, which is equal to, these all numbers are recurring. So we will stop here division. 0.428571. All the numbers are repeating, so we stop the division. Now see question number 5. One negative number is given, 11/13, which has minus sign. We divide 11 by 13. Minus sign will be written in answer. 11 is our dividend, 13 is divisor. 13 का टेबल आता है हमको. 11 13 से छोटा है, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा दिए. ये 10 टाइम्स बढ़ गया, 110 हो गया. 13 के टेबल में 110 से छोटा नंबर 13 8s are 104. सब्ट्रैक्ट करेंगे, we get here 6. 0 लगाएं. 60 से छोटा नंबर 13 के टेबल में 52. 13 4s are 52. Subtracting we get 8. 80 से छोटा नंबर 78. 13 6s are
78 subtracting we get 2, again 0, 20 से छोटा नंबर 13, 13 1 जा 13, we get 7, add here 0, 13 5 जा 65, subtracting 65 from 70, we get 5, again 0, 50 से एक छोटा नंबर 13 के टेबल में 13, 3 जा 39, we get here 11 which is our divided. फर्स्ट नंबर आ गया है, इसके लिए हम यहाँ पर डिवीजन स्टॉप कर देंगे क्योंकि अब बाकी के सब नंबर्स रिपीट होंगे. दिस इज आवर रिमाइंडर. So we write here the quotient 11 upon 13 is equal to नेगेटिव रैशनल नंबर दिया हुआ है, इसके लिए उसका आंसर जो रहेगा वो नेगेटिव होगा माइनस 0.846153 बार. All are repeating, so we put a bar on the numbers. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है. शो द नंबर √5 ऑन नंबर लाइन. और क्वेश्चन नंबर 3 है शो द नंबर √7 ऑन द नंबर लाइन. दोनों भी इरेशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरह से बताया जाता है मैं फिगर ड्रॉ करती हूं, आप लोग देखकर अपनी नोटबुक में बनाएंगे. सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है. और इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करनी है. हमारे नोटबुक के लाइन सब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसलिए हम लाइन पर ही लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ये हमारी पैरेलल लाइन हो जाएगी. मैं थर्ड लाइन पर ले रही हूं. थर्ड लाइन पर लाइन ड्रॉ की. दिस इज पैरेलल टू आवर नंबर लाइन. Now take any point and draw a right angle on it. राइट एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का. प्रोट्रैक्टर अच्छे से रखेंगे. 90 डिग्री का एंगल बनाई. नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाने के बाद हमें ये डिस्टेंस कंपास में लेना है. कंपास में ये डिस्टेंस लेकर हम आर्क बनाएंगे नंबर लाइन पर. ये और एक इधर, एक लेफ्ट में और एक राइट में. लेफ्ट का जो आर्क है उसको हम पॉइंट ओ नाम देंगे. दिस इज पॉइंट ओ. उसके बाद का ये जो डिस्टेंस है ये 1 है. ये है हमारा 2. अगर हम सेम डिस्टेंस 2 के बाद लें तो ये हो जाएगा हमारा 3. इस तरह से और आगे आ सकते हैं. ये आर्क हमें 2 दिखाता है, ये आर्क हमें 3 दिखाता है. नाउ व्हाट इज 2? 2 इज √4. 2 is √4. What is 3? 3 is √9. हमें बताना है √5 और √7. √5 √7 ये √4 और √9 के दरमियान में कहीं तो होंगे. वो किस तरह से मालूम करेंगे?
अंडर रूट 4 पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये जो पॉइंट मिला है यहां से हमें आर्क बनाना है। ओ पर रखना है। ओ इज सेंटर, ओरिजिन हियर ऑन नंबर लाइन। ओ पर रखकर हमें आर्क बनाना है नंबर लाइन पर। यह हमारा रहेगा अंडर रूट 4 के बाद अंडर रूट 5। दिस इज अंडर रूट 5। 5 पर परपेंडिकुलर बनाएंगे 90 डिग्री। प्रोट्रैक्टर सही से रखेंगे, 90 डिग्री का एंगल बराबर बनाएंगे और आर्क बनाते वक्त ध्यान रखेंगे कि हमें कंपास ओ पर रखना है। ओ से आर्क बनेगा। अभी पहले हम 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं अंडर रूट 5 पर। ओ पर रखना है और दोबारा आर्क बनाना है। कौन सा डिस्टेंस लेकर? ये जो परपेंडिकुलर जहां पर पैरेलल लाइन को टच कर रहा है ये डिस्टेंस लेंगे हम कंपास में। और ये जो आर्क मिला है नंबर लाइन पर ये है हमारा अंडर रूट 6। अब अंडर रूट 6 पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। प्रोट्रैक्टर रखेंगे सही से, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। दिस इज परपेंडिकुलर ऑन रूट 6। नाइन्टी डिग्री का एंगल बनने के बाद दोबारा हमको कंपास को ऊपर रखना है और डिस्टेंस ये लेना है कंपास में। ये डिस्टेंस लेकर हम आर्क बनाएंगे। दिस विल बी रूट 7, अंडर रूट 7। Now try this figure in your notebook.